Hello friends, till now we have discussed introduction to trigonometry and we have discussed up to the concepts of trigonometric identities. हमने तीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है, उन्हें डिराइव किया है और उनसे कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट हम उस पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं जिनमें उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन है. सो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक प्रैक्टिस शीट में से सॉल्व कर लिया है. नाउ हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं. अगेन आई एम सेइंग you need to be very well versed with the trigonometric identities and the results obtained from them. Okay, and even if you do not know, even if you are not very well versed with these identities, try to understand the problems that I am solving on board. Okay, because in between the problems मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, किस तरह से उसे क्वेश्चन में यूज करना है, इस बारे में भी बताऊंगा. ओके, सो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 30 सेज prove the following trigonometric identities. Okay, so it's again a question of proof. You need to prove some given identity. Now what is mean by prove some identity? It means you just need to prove that the equation is a valid equation. It is actually an equation, that is LHS and RHS are equal. So the first identity that we need to prove is, now remember the identities which I am writing on the board or which are given in this question, you may feel कि हमने तो तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, फिर ये बाकी की आइडेंटिटीज कहाँ से आ गई. सो आई शुड बी वेरी क्लियर कि ये जो भी आइडेंटिटीज बनी है, जो भी आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में हमें दिख रही हैं, ये चारों पार्ट्स, ये चारों आइडेंटिटीज डिराइव हुई हैं उन्हीं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज से. जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है वह तो तीन ही हैं, हमने जो तीन डिराइव करी, बाकी सभी आइडेंटिटीज उन्हीं के मैनिपुलेशन से, उन्हीं को घुमा फिरा के बनाई गई हैं. ओके, सो सबसे पहली सब पार्ट, क्वेश्चन नंबर 30 का सब पार्ट 1 is 1 plus tan square theta into 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is equals to 1. Okay, so this is the first problem. It says 1 plus tan square theta into 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is equals to 1. हमें ये प्रूफ करना है कि हाँ LHS और RHS बिल्कुल बराबर हैं. So let us try to prove this. क्या करेंगे हम सबसे पहले LHS को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हम LHS को लिखते हैं, LHS is equals to 1 plus tan square theta into 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. Okay, this is your LHS. Now just turn the pages and try to identify which identity, which of the three trigonometric identity I can apply in this problem. If you turn your pages and if you observe the identities very closely, you will find that 1 plus tan square theta is basically sec square theta. Okay, so in place of this 1 plus tan square theta, I can write sec square theta. Okay, and then after this it is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. Try to remember the algebraic identity. A minus B into, sorry, A plus B into A minus B, this is equals to A square minus B square. So in place of 1 plus sin theta and 1 minus sin theta, I can combine these two brackets and make it as A square minus B square. A square minus B square means here I can write 1 square minus sin theta square. Okay, because in our equation A represents 1 and B represents sin theta. Okay, or I should say the vice versa.
So this is 1 square minus sin theta whole square. Now moving further, this is sec square theta as it is. Okay, now should I apply the identity again? Should I convert this sec square theta into 1 plus tan square theta? Obviously not, because I have done the same thing here. Okay, मैंने जब 1 plus tan square theta को sec square theta ही लिखा है, so why should I write it again as 1 plus tan square theta? So it will remain as it is. Then further you will have 1 का square 1 minus sin theta square means sin square theta. Okay, it will be sin square theta. Now again turn the pages and try to identify which identity you can see here. यहाँ पर कौन सी identity दिखाई दे रही है? 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is basically cos square theta. Okay, we know this very well. So in the next step, this will be sec square theta as it is into cos square theta. In place of this 1 minus sin square theta, I can write cos square theta. Why it is so? Because the first identity says sin square theta plus cos square theta is equals to 1, and from that I can manipulate it and get the value of cos square theta. So we have sec square theta into cos square theta. Now moving further, sec square theta, it will become 1 upon cos square theta. Okay, into cos square theta as it is. So I can see, I can cancel cos square theta here, and finally I will get 1, and this is my RHS. Okay, and this is my RHS. So try to observe very carefully, see what I have done in this question. I have just written LHS, and then I turn my page and try to identify which identity I can apply here, because I know the identity, I know the manipulation of that identity as well. हमने जब भी identity लिखी, हमने sin square theta को cos square theta के terms में लिख के देखा, हमने cos square theta को sin square theta के terms में लिख के देखा, and similarly बाकी दो identities में भी यही किया. So all these identities, all these manipulations are also identities in themselves. Okay, तो इसीलिए हमने यहाँ पर this is direct, ये तो हम समझ सकते हैं. Then coming to this part, you need to observe this. Now how should you observe this? सबसे बड़ा सवाल मन में आएगा कि हमें कैसे पता कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखना है, हमें कैसे पता कि इसकी जगह पे ये लिखना है. ये पता तभी चलेगा जब आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्स प्रैक्टिस. सो डोंट गेट डिसहार्टेड अगर आपको ये एक बार में समझ नहीं आया. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मैंने लिखा है वह क्या लिखा है और क्यों लिखा है. आई एम गिविंग यू द रीजन at each and every step. Okay, so if you are comfortable, then note down it as it is, but if you are not very much comfortable, if you are still confused, then try to write in bracket each and every step that I am teaching on this board. Okay, जो भी मैं step बोल रहा हूँ, जो भी मैं reason दे रहा हूँ कि इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, जो भी मैं reason दे रहा हूँ, उस reason को बड़े ध्यान से आप साइड में bracket में लिख लीजिए. ओके, ताकि जब आप एग्जाम में इसे रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों लिखा गया है. ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा टफ पॉइंट यही है कि कौन सा स्टेप क्यों आ रहा है, ये हमें समझ में नहीं आता. ओके, सो ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज ये दोनों किसी भी आइडेंटिटी में फिट नहीं हो रहे थे. तो हमने देखा कि इस पर अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगा दी जाए तो ये आ जाएगा और इसमें आइडेंटिटी फिट हो जाएगी. हमारा अल्टीमेट टास्क है कि जो तीन आइडेंटिटीज हमारे पास हैं किसी भी तरह से उन्हें क्वेश्चन में अप्लाई किया जाए, किसी भी तरह से उन्हें क्वेश्चन में लगाया जाए. ओके, सो दैट्स व्हाई हमने इसे कन्वर्ट कर दिया. सो यू कैन सी LHS एंड RHS आर इक्वल एंड वी हैव सॉल्व्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ 30th क्वेश्चन. ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट. नाउ the second part of question number 30 is tan theta plus sin theta upon tan theta minus sin theta.
okay, and this is equals to sec theta plus 1 upon sec theta minus 1. Okay, now we have this equation. I need to prove that this LHS and RHS are equal. So writing down my LHS is tan theta plus sin theta upon tan theta minus sin theta. Now what should I do? What approach should I apply? हमें किस तरह से सोचना है? सबसे पहले तो देखिए हमें आइडेंटिटीज के बारे में सोचना है. क्या इसमें कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? ऑब्वियसली नॉट. वाई? बिकॉज सभी आइडेंटिटीज में स्क्वायर किया हुआ है. ओके, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सभी आइडेंटिटीज में स्क्वायर है. लेकिन यहां पर कहीं पे भी स्क्वायर नहीं बन रहा. ओके, तो क्या हम स्क्वायर बना सकते हैं? हाँ, मे बी पॉसिबल, स्क्वायर बना सकते हैं. लेकिन अगर हम LHS और RHS को बड़े ध्यान से देखें तो यहां पर हमें tan थीटा और sin थीटा दिख रहा है, यहां पर हमें sec थीटा दिख रहा है. नाउ व्हाट इज sec थीटा? sec थीटा मींस 1 अपॉन cos थीटा. तो फिर हम अप्रोच कैसी बनाएं? अप्रोच इस तरह से होनी चाहिए कि हमें किसी भी तरह से इस tan थीटा और sin थीटा को कन्वर्ट करना है किसमें? cos थीटा में. ओके, cos थीटा में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम sec थीटा को बना सकते हैं. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज we will simplify this tan theta. हम इस tan theta को simplify करते हैं. It will become sin theta upon cos theta plus sin theta whole upon sin theta upon cos theta minus sin theta. Okay, sin theta upon cos theta plus sin theta whole upon sin theta upon cos theta minus sin theta. We have this identity. Okay, we have this simplification. So now what I can do is I can see in the numerator and in denominator. अगर हम numerator को बड़े ध्यान से देखें तो numerator में you will find I can take sin theta as common. मैं इस ब्रैकेट में से, इस numerator में से sin theta को बाहर निकाल सकता हूं. So it will become sin theta to the bracket 1 upon cos theta and plus 1 as it is. Okay, then whole upon this will be, अगर मैं डिनोमिनेटर से भी साइन थीटा को कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1. ओके, क्या करा हमने ब्रैकेट में से साइन थीटा को बाहर निकाल लिया. अब आप पूछेंगे कि क्यों निकाल लिया, बाहर क्यों निकाल लिया गया, क्यों नहीं उसको अंदर ही रहने दिया गया? इट्स बिकॉज हमें ऐसा दिख रहा है कि ऊपर से साइन थीटा और बाहर से नीचे से साइन थीटा को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो दोनों साइन थीटा कैंसल हो सकते हैं. और हमारा टास्क ही यही है कि हम साइन थीटा को एलिमिनेट कर दें, हम टैन थीटा को एलिमिनेट कर दें, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा के टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को बना दें. सो हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से ऊपर से और नीचे से साइन थीटा को बाहर निकाल लेता हूं तो दोनों ही केसेस में साइन थीटा कैंसल आउट हो जाता है. अल्टीमेटली एक्सप्रेशन बचता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1. नाउ व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा? 1 अपॉन कॉस थीटा इज सिंपली सेक थीटा. सो दिस इज सेक थीटा प्लस 1 upon this is 1 upon cos theta, it is also sec theta minus 1, and I can see sec theta plus 1 upon sec theta minus 1 is basically the RHS. Okay, so in this manner we have proved that this expression is equal to this expression. Again, this question has a different approach. This question has a different approach. Every new question, every other question you see in trigonometry will going to have a different approach. So what you can do is you can solve n number of questions of different kind so as to grasp the concept that how a question can come. Okay, because it's an extemper. Okay, in trigonometry every other question is an extemper. It may ask you to apply some other rule or other knowledge. For example, here यहाँ पर हमने एल्जेब्राइक आइडेंटिटी भी यूज करी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज करी. यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ रेशोज के बीच में रिलेशन यूज करा और कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करी. ओके,
दैट्स वाई क्वेश्चन दोनों ही अलग हैं। सो ये सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सो हमने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। Okay, now let us solve the third part of question number 30. Third part is square root of 1 plus cos A upon 1 minus cos A is equals to cosec A plus cot A. Okay, square root of 1 plus cos A upon 1 minus cos A is equals to cosec A plus cot A. So I need to prove that this expression in LHS is equal to this expression in RHS. Now the first and foremost thing that we can note in this question is that in LHS we have a square root. हम ये देख सकते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें दिख रही है कि LHS में एक स्क्वायर रूट है और RHS में स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देख सकते हैं LHS में स्क्वायर रूट है, RHS में नहीं है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि हमें किसी भी तरह से इस एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। हमारा टास्क है कि हम किसी भी तरह से स्क्वायर रूट को रिमूव कर दें। अगर हमने स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया तो मे बी ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, नाउ अब हमें ये सोचना है कि इस LHS में स्क्वायर रूट को कैसे रिमूव किया जाए। ओके, राइट डाउन द रीजन व्हाट आई टोल्ड यू। हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमारे पास LHS है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, हमारे पास ये LHS में है। हमें सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए कि आवर टास्क इज टू रिमूव द स्क्वायर रूट। ओके, तो अब हम जो भी इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जो भी इसमें मैनिपुलेशन करेंगे, वह इसी तरह से होंगे कि स्क्वायर रूट को रिमूव किया जा सके। ओके, नाउ अब स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, कैसे करें हमें ये सोचना है। दिस इज 1 प्लस कॉज ए, तो 1 प्लस कॉज ए में कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। 1 माइनस कॉज ए अगेन अपॉन में है 1 माइनस कॉज ए, तो इसमें भी कुछ खास मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करें, फिर हम वापस से अपनी आइडेंटिटीज के ऊपर आते हैं। आइडेंटिटीज में हम ये देखेंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू थी, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू थी, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ये वैल्यू लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा की। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? इट इज 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यही होता है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो जब हम इसे स्प्लिट करेंगे वी विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमें क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को स्प्लिट करा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। तब हमने देखा कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने उसी आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करके इस तरह से बना लिया। नाउ यहां पर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए डिवीजन में है, लेकिन आइडेंटिटी में 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसमें कैसे यूज करें, हम इस आइडेंटिटी को कैसे इस LHS में सब्स्टिट्यूट करें। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम 1 प्लस कॉस ए या फिर 1 माइनस कॉस ए किसी भी एक की वैल्यू
इस आइडेंटिटी से निकाल के इस LHS में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस एक्सप्रेशन से अगर मैं 1 माइनस कॉज ए की वैल्यू लिखूं, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू लिखूं, सो व्हाट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा? आई कैन सी दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा को LHS में शिफ्ट कर देता हूं, सो आई विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos theta. Okay, try to observe this, try to understand what I am saying. मैं कह रहा हूं कि 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। कैसे आई ये वैल्यू? इस एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करके। सो इसे हम कह देते हैं, लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन। इसे हम कह देते हैं, सॉरी, इसे हम कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसे कहते हैं सेकेंड इक्वेशन। सो व्हाट आई कैन राइट इज फ्रॉम equation 1 and 2, that is LHS is equals to square root of, now 1 plus cos A as it is, this is 1 plus cos A, this is as it is, whole upon I can see 1 minus cos A को हमने इस तरह से लिख दिया, तो अब इस वैल्यू को हम 1 minus cos A की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। so this will become साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉज ऑफ ए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमने 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, वह कितनी है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, उसे हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दिस इज कंप्लीट डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो ये कैसा हो जाएगा? 1 plus cos A as it is, and this 1 plus cos A will move to numerator, so 1 plus cos A whole upon sin square A। यह एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 plus cos A into 1 plus cos A upon sin square A, so this will be equals to square root of 1 plus cos A whole square, okay, 1 plus cos A whole square divided by sin square A, okay, this is divided by sin square A. now 1 plus cos A whole square का square root, so definitely अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है square root of x square, so this is equals to x, square root of x square कितना होता है? x, तो square root of 1 plus cos A whole square will give you only 1 plus cos A, 1 plus cos A upon sin square A का square root, it will give you sin A, okay, it will give you sin A. now observe it very carefully. हमने क्या करा? हमने स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया। स्क्वायर रूट को रिमूव कैसे करा? इस आइडेंटिटी को यूज करके, इस आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करके, ओके, डायरेक्टली यूज नहीं हुई आइडेंटिटी, हमने उसे मैनिपुलेट करके यूज किया, तो यहां पर हमारे पास 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए आ गया। नाउ अब हम क्या करें? अब हम इस एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करेंगे कैसे? इट विल गिव यू 1 अपॉन साइन ए प्लस, लेट अस राइट इट हियर, दिस विल गिव यू 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए। नाउ अब आप पूछेंगे कि इसे स्प्लिट क्यों करा? सो लेट मी रिमाइंड यू, आई एम सेइंग दैट हर एक नया क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट है, हर बार कुछ नई अप्रोच लगेगी, तो आपको ये सोचना है। आपको यहां पर दिख रहा है कि एक्सप्रेशन आ गया, अब आगे क्या कर सकते हैं? तो एक चीज है कि हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो स्प्लिट करके देखिए कि क्या एक्सप्रेशन बनता है। अगर स्प्लिट करने से कोई फ्रूटफुल एक्सप्रेशन नहीं बनता तो फिर कुछ और मेथड लगाते, लेकिन अभी हम देख सकते हैं स्प्लिट करने पे हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो 1 अपॉन साइन ए विल बिकम cos A के, and cos A upon sin A will become cot A, and this is our RHS, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, ओके, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। सो अल्टीमेटली सिर्फ इसको स्प्लिट करने पे, इसे ब्रेक करने पे हमारा RHS आ गया। तो क्या हमें कुछ और अप्रोच लगानी है? नहीं, हमें कोई अप्रोच दूसरी नहीं लगानी,
हमें सिर्फ इसे स्प्लिट करना है और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। सो दिस क्वेश्चन हैज अ कॉन्सेप्ट दैट स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए मैंने क्या करा, हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी कि स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, हमारा टास्क यही था। तो उस टास्क को पूरा करने के लिए हमने इसमें या इसमें से किसी एक की वैल्यू को डिटरमाइन करा। हमने डिटरमाइन करा 1 माइनस कॉज ए का वैल्यू। कैसे डिटरमाइन करा, इस एक्सप्रेशन से, और इस एक्सप्रेशन से ये वैल्यू आया, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा और डायरेक्टली आंसर आ गया। ओके, सो हमें फाइनल स्टेप तक नहीं पता कि किस तरह से सॉल्व होगा, किस तरह से आंसर आएगा, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारा टास्क क्या है। अगर आपको ये चीज क्लियर है कि टास्क क्या है अल्टीमेटली, तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करनी है। ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्स प्रैक्टिस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। Okay, let us now solve the fourth part of question number 30. The fourth part is question number 30 is square root of sec square theta plus cosec square theta is equals to tan theta plus cot theta. Okay, what the expression is, square root of sec square theta plus cosec square theta is equals to tan theta plus cot theta. We need to prove that this expression is equal to this expression. Now again you can see, if you observe it very carefully, we have a square root in LHS and we do not have any square root in RHS. So हमें क्या करना है, हमें यही सोचना है कि किस तरह से इस स्क्वायर रूट को हटा दिया जाए, किस तरह से स्क्वायर रूट से छुटकारा मिल जाए। ओके, नाउ तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम LHS को लिखते हैं। LHS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ अब ये सोचना है कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, क्या और कुछ मेथड हमें लगाना है। तो देखिए, अगर हम LHS और RHS को ऑब्जर्व करें तो यहां पर हमारे पास सेक थीटा और कॉसेक थीटा है और RHS में हमारे पास टैन थीटा और कॉट थीटा है। तो हमें आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और हमें यह भी पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो डेफिनेटली हमें सेक को टैन में कन्वर्ट करना आता है और कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करना आता है। सो हमें यही सोचना है कि हाउ शुड आई यूज दिस आइडेंटिटी and this identity, cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta। हमें इन आइडेंटिटीज को किसी भी तरह से यूज करना है। कैसे यूज कर सकते हैं, आई कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cosec square theta in this equation and the value of cosec square theta this in this equation. So what I will get is this LHS is square root of, now in place of sec theta, sec square theta, I can write 1 plus tan square theta. Okay, then in place of cosec square theta I can write 1 plus cot square theta. Okay, in place of sec square theta हमने 1 plus tan square theta लिखा और in place of cosec square theta हमने 1 plus cot square theta लिखा। Now if I rearrange all the terms, हमें मिलेगा tan square theta plus cot square theta plus 1 plus 1 that is 2. Okay, 1 plus 1 that is
सो नाउ हमारे पास फाइनल एक एक्सप्रेशन आया दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट। तो अगेन हमें यहां पर स्क्वायर रूट दिख रहा है लेकिन RHS में स्क्वायर रूट नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें स्क्वायर रूट तो रिमूव करना ही है। अब यहां पर क्या अप्रोच लगाएं, किस तरह से आइडेंटिटी को लगाएं, क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है जो अभी हम लगा सकते हैं सच दैट वी कैन रिमूव दिस स्क्वायर रूट। सो देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज, अगर हम किसी तरह से इस एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर बना दें, अगर हम इस एक्सप्रेशन को किसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना दें तो ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर रूट रिमूव हो सकता है। ओके, सो मैं क्या कहना चाहता हूं दैट इज कि इफ समहाउ we make this expression a perfect square, then I will be able to remove square root. Okay, so try to think about this, try to understand this. हमारे पास एक्सप्रेशन है LHS is equals to square root of tan square theta plus cot square theta plus 2. So इस एक्सप्रेशन को किसी तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया जाए। अब ये सोचना है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए। Okay, I think you have got the reason why I am trying to make it a perfect square. It's because our task is to remove this square root. तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं। कैसे बनाना है उसे समझते हैं। देखिए, दिस एक्सप्रेशन इज रिटन एज tan थीटा का होल स्क्वायर, ओके, प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ओके, प्लस 2। हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, हम एक कंडीशन जानते हैं दैट बट वी नो दैट tan थीटा into cot theta is equals to 1, okay, because cot theta is 1 upon tan theta. So tan theta को मैं RHS से LHS में शिफ्ट करता हूं, I will get tan theta into cot theta is equals to 1. This is a simple explanation, this is a simple example, okay, simple expression. So I can use this expression in this equation. How? Let us see this. Try to observe it very carefully. I am writing this tan square theta as it is. I am writing this cot square theta as it is, cot theta whole square as it is, plus this is 2 into tan theta into cot theta. Okay, try to understand this. हमने क्या करा, हमने इस 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया tan theta into cot theta. So tan theta whole square plus cot theta whole square plus 2 into tan theta into cot theta. This is the expression that we can write. Okay, now observe this expression very carefully. What I can see is here I can apply an algebraic identity. Which identity? This is a square, this is b square, this is plus 2 times a into b. And what is a square plus b square plus 2ab? A square plus b square plus 2ab is equals to a plus b whole square. So this is a hit and trial process. Okay, हमने hit and trial process कैसे लगाया, हमारा टास्क था स्क्वायर रूट को हटाना, तो इसीलिए इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने देखा कि tan थीटा cot थीटा 1 होते हैं, तो यहाँ पर 2 के साथ में अगर tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लीकेशन में लिख भी दूं, then also this will become 1 because tan theta into cot theta is 1.
सो इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, बिकॉज 2 into 1 will give you 2 only, okay. So that's why this is like this, a square plus b square. Now why I thought to make this tan theta and cot theta is equals to 1. मैंने यही एक्सप्रेशन क्यों यूज करा? इट्स बिकॉज हमारे पास tan थीटा होल स्क्वायर है, हमारे पास cot थीटा होल स्क्वायर है और 2 भी साथ में है, तो हमें यही सोचना है कि इन दोनों को कैसे यूज किया जाए. हमें देखने से ये समझ में आना चाहिए कि ये a स्क्वायर हो सकता है, ये b स्क्वायर हो सकता है, तो प्लस तो सिर्फ और सिर्फ 2ab की कमी है, तो 2ab लाने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को यूज कर लिया. अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड, ये प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन आई कैन राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर. ओके, tan theta plus cot theta whole square. So square root of tan theta plus cot theta whole square will give you tan theta plus cot theta, and this is your RHS. This is your right hand side. Okay, so hence proved. In this way we have proved this. Try to observe, this question is a bit difficult question, it's an important question, let us mark it a star. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं है, बहुत सारे अप्रोचेस लगाए जा रहे हैं. आइडेंटिटी लगाई, उसके बाद यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिला कि इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाया कैसे बनाया. हमने देखा कि ये ए स्क्वायर बन सकता है, ये बी स्क्वायर हो सकता है, तो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए 2ab. तो 2ab लाने के लिए हमने इस 2 का यूज किया, इसमें tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, so this is the fourth part of question number 30. You may feel कि ये क्वेश्चन में ये कैसे सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये अप्रोच लगानी है. So for that you need to practice a lot questions. Okay, we will solve many questions on board. हम हर तरह के क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, मैं सब में अप्रोचेस आपको सिखाऊंगा, बट स्टिल सिर्फ लेक्चर सुनने से ही आपको अप्रोच नहीं बनेगी. You need to write it yourself, you need to practice it yourself. Okay, खुद से आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अप्रोचेस नहीं बनेगी. आप कितना भी लेक्चर को बार बार देख लें, 50 बार भी देख लें, लेकिन खुद से प्रैक्टिस जरूरी है. ओके, सो यहाँ पे हमने 30th क्वेश्चन कंप्लीट किया, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं.